हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਊ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂ। ਐਨ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਯੂ ਹੈ ਯੂਨਿਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ CGS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, FPS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, MKS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ SI ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ CGS ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ FPS ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਮੋਲ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਸਮੋਲ ਹੈ। FPS ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ, ਪਾਊਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਪਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 453 ਗ੍ਰਾਮ, 453 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਤੇ 1 ਫੁੱਟ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30.48 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CGS ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ MKS ਸਿਸਟਮ। MKS ਸਿਸਟਮ ਆਲਮੋਸਟ SI ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ SI ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MKS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ SI ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਫॉर 1 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜੀ SI ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰਸ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰਸ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, मीटर है ਜਾਂ किलोग्राम है ਜਾਂ सैकेंड है, ये डिफाइन किए, इन्हां ਦੀਆਂ वैल्यूज़ दसियां, मीटर की की लेंथ होएगी, ठीक है, किलोग्राम कितना साइज़ होएगा। तो इन्हां ने इन्हां चीज़ों को डिफाइन किया तो इन्हां ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ है वो फिक्स कीतियां। तो जो भी असी यूनिट की गल करते हैं, किसी भी तरह का यूनिट है, तो उस यूनिट के विच की खासियत होनी चाहिए है, ठीक है। तो अज असी टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो फर्स्ट है जी, इट शुड बी वैल डिफाइंड। वैल डिफाइंड का मतलब है कि उसकी वैल्यू सानू चंगी तरह पता होवे, ठीक है, अपनी गिट्ठां दे वांगू नहीं, अपनी आर्म लेंथ की तरह नहीं कि अलग अलग होवे अलग अलग लोगों की। तो इनकी वैल्यू जी वो वैल डिफाइंड होनी चाहिए कि सानू पता होना चाहिए कि 1 मीटर की लेंथ एक्चुअल दे विच कितनी है, ठीक है, 1 kg वेट की चीज़ है, तो वैल्यू फिक्सड है, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वैल्यूज़ सेम है। सैकेंड है, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज़, कि इसका साइज़ जोड़ा है वो कन्वीनियंट होना चाहिए अपने लिए जी, सूटेबल साइज़ होना चाहिए, ना तो इस यूनिट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जो आप यूज़ करना है, ना ही बहुत स्मॉल हो। थर्ड है कि इट शुड बी ईजीली रीप्रोड्यूसेबल, ठीक है, जे उस यूनिट दे विच जो असी यूज़ कर रहे हैं, मीटर रॉड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाए तो जां गुम जाए तो ईजीली रीप्रोड्यूसेबल हो, ठीक है, असी उहदे वर्गा कुछ होर लै सकीए, खरीद सकीए, मंगवा सकीए, बना सकीए। हाँ, असी ये भी कह सकते हैं कि इट शुड बी ईजीली अवेलेबल, तो आपां नूं ईजीली अवेलेबल होना चाहिए है, ठीक है, कुछ इहो जी वैल्यू होवे, कुछ इहो जी क्वांटिटी, कुछ इहो जी चीज़ होवे जिहड़ी सानूं ईजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट चों। तो इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशनस, तो फिजिकल कंडीशनस वाले चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब टैंपरेचर चेंज हो रहा है, सर्दियों तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों तो सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, प्रैशर चेंज होंदा है, ठीक है। तो ये टैंपरेचर या प्रैशर के नाल चेंज होने वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, कि ये टाइम नाल चेंज नहीं होना चाहिए, तो प्लेस टू प्लेस मतलब अलग अलग जगह पर, जिवें असीं कहने कि ऑल राउंड द वर्ल्ड, जिवें असीं SI यूनिट बनाया कि सारे किसी भी कंट्री चले जाओ मीटर रॉड की लेंथ सेम होएगी। तो इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विद टाइम या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए, विद फिजिकल कंडीशनस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ईजीली अवेलेबल होवे, ईजीली रीप्रोड्यूसेबल होवे, सूटेबल साइज़ दी होवे, ते वैल डिफाइंड होवे। तो ये कुछ साडे यूनिट दे विच करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए है, ठीक है। जो असी लेंथ मास टाइम की गल कर रहे सी, साडियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सीगियां, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सीगियां, एक्चुअल दे विच 3 ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैगियां, साडे कोले 7 क्वांटिटीज़ की लिस्ट है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है जी। तो मैं आपां उन्हां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, जां इन्हां नूं कहंदे आ जी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो असी बेसिक भी कह सकते हैं जी, बेसिक और फंडामेंटल। असी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की गल करनी है हुण। तो साडे कोले सब तो पहला असी सीरियल नंबर लिख रहे हैं जी, ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी का नेम कि किहड़ी फिजिकल क्वांटिटी की गल कर रहे हैं, फिर उसके फंडामेंटल यूनिट्स या SI यूनिट्स इत्थे आपां इन्हां दे लिखांगे, जिहड़ा यूनिट है उसनूं किस सिंबल नाल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिवें पहलियां 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की फिजिकल क्वांटिटीज़ का तो तुहानूं पता है, ठीक है जी, असीं किहड़ियां क्वांटिटीज़ की गल कर रहे हैं। फस्ट फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी असीं लै रहे हैं इत्थे वो है जी लेंथ, तो इहदी गल कर चुके हैं असीं ऑलरेडी जी, ठीक है। दूसरी है जी मास, तीसरी है टाइम, इन्हां तिन्नां दी गल असीं ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इन्हां नूं असीं बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहने आ। लेंथ मास ते टाइम बारे पता है जी, असीं जिहड़े SI यूनिट्स की गल करिए, लेंथ का यूनिट की है, लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है। मास का यूनिट की है, मास का यूनिट है जी किलोग्राम, तो टाइम का यूनिट की है, टाइम का यूनिट है जी सैकेंड, ठीक है। किहड़ा सिंबल यूज़ किया जाता है, मीटर लिए यूज़ किया जाता है जी M, स्मॉल m, किलोग्राम लिए स्मॉल k, स्मॉल g, सैकेंड लिए S, स्मॉल लैटरस यूज़ होंगे है जी, ठीक है। तो कैपिटल लैटर यूनिट दे विच मोस्टली उत्थे यूज़ होंदा जिथे किसी साइंटिस्ट के नेम तो यूनिट ड्राइव किया जाता है, ठीक है। जे किसी साइंटिस्ट के नेम तो है वो यूनिट है तो फिर उन्होंने असीं कैपिटल लैटर के नाल
लिखते हैं। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है जी टैंपरेचर। वैसे तो टैंपरेचर लिए तुसीं यूनिट यूज़ किया होएगा डिग्री सैल्सीयस, है ना, फारनहाइट भी सुनिया होएगा, पर जो SI सिस्टम दे विच इसका यूनिट है वो है कैलविन। कैलविन ये साइंटिस्ट के नेम तो है, इसलिए इसनों कैपिटल K दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है साडे कोले इलैक्ट्रिक करंट। इस क्वांटिटी नूं SI सिस्टम दे विच मेजर किया जाता है एम्पीयर दे विच, ठीक है, इसलिए क्योंकि एम्पीयर भी साइंटिस्ट नेम तो है, इसनों कैपिटल A दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है। क्लीयर। सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी। इसनों मेजर किया जाता है जी कैंडला दे विच, इसका यूनिट जो है वो है CD। सैवंथ फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसनों मेजर किया जाता है जी मोल दे विच SI सिस्टम दे विच, सिंबल है MOL। इस लिस्ट नूं पढ़ के सब तो पहला जो क्वेश्चन माइंड दे विच आंदा है कि ये लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सारियां की चीज़ां जी, है ना। तो इत्थे मैं तुहानूं दसदा जी जो असीं फिजिक्स की ब्रांच स्टडी करन जा रहे हैं, जो सब तो पहला असीं स्टडी करनी है मकैनिक्स, ठीक है। तो उनदे विच सिर्फ असीं किंदा यूज़ करना है जी, असीं यूज़ करना है जी लेंथ मास ते टाइम दा। तो इत्थे सिर्फ अपने कोल किंदी गल होनी है जी, लेंथ दी, मास दी ते टाइम दी। तो आपां नूं वरी करन दी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्हां दे यूनिट सानूं पहलां ही पता है जी, ठीक है, कि इनके यूनिट जिहड़े है वो मीटर है, किलोग्राम है ते सैकेंड है। क्लीयर जी। M सिंबल है, KG सिंबल है तो S सिंबल है। फिलहाल अपने लिए 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किते यूनिट 7, 8 दे विच जाके असी गल करांगे टैंपरेचर दी, ठीक है, वो भी अजे बहुत दूर की गल है। तो टैंपरेचर नूं असी कैलविन दे विच मेजर करांगे, ठीक है जी। तो फिलहाल असी इहदी गल नहीं करनी अजे। इलैक्ट्रिक करंट नूं असी जाके मेजर करांगे जी +2 दे विच। तो अजे अपने ये काम की चीज़ नहीं है, तो असी इलैक्ट्रिक करंट नूं इत्थे डिस्कस नहीं करना, ठीक है जी। तो लुमिनस इंटेंसिटी ते क्वांटिटी ऑफ मैटर की गल भी अपने कोले नहीं आनी, तो आपां इन्हां नूं भी इत्थे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि असी ज़्यादा इनके डिटेल दे विच जाइए, ठीक है जी। जिथे जिथे जिमें जिमें ये क्वांटिटीज़ आई जाणगियां असी इन्हां बारे दसदे जावांगे। फिलहाल +1 दे विच अपने कोले लेंथ मास ते टाइम ही इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है जी। नो नीड टू वरी अबाउट रिमेनिंग क्वांटिटीज़। तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इन्हां तो इलावा 2 अपने कोले होर क्वांटिटीज़ है जी, जिसनों इस लिस्ट दे विच ऐड किया गया है, या इस सप्लीमेंटरी लिस्ट कह सकते हैं जी, ठीक है। तो इन एडिशन टू दीज क्वांटिटीज़ देर आर 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट है एंगल, प्लेन एंगल कह दें आप इसनों, तुसीं जिसनों कोण कहने हो जी, वो असल दे विच उसनों एंगल कहा जाता है। तो प्लेन एंगल है जिहड़ा कि 2 लाइनस जिस जगह पर इंटरसैक्ट करदियां हैं वो बन रहा, फॉर्म हो रहा। तो इसके यूनिट जिहड़े है वो तुसीं डिग्री दे विच मेजर करते हो, बट SI सिस्टम दे विच रेडियन दे विच मेजर किए जाते हैं, ठीक है। रेडियन की चीज़ है, इस दे बारे भी आपां गल करांगे। तो इसका सिंबल है जी RAD, ठीक है। तो एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल जिहड़ा है वो स्ट्रेडियन दे विच मेजर किया जाता है। स्ट्रेडियन इस द यूनिट है, तो इसनों SR दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल बारे तो तुहानूं पता ही है जी, ठीक है। 2 लाइनस दे विच जो एंगल बनता है। सॉलिड एंगल की चीज़ है, ये 3 डिमेंशनस दे विच एंगल फॉर्म होंदा है। तो इस दे बारे भी आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे जी, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट दीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की चीज़ है जी, तो ये क्वांटिटीज़ जिहड़ियां ना वो एक दूजे तो ड्राइव नहीं हो सकदियां, ठीक है, ना ही किसी होर तो ड्राइव हो सकदियां। जिवें लेंथ नूं असीं किसी होर क्वांटिटी तो नहीं बना सकते, किसी नूं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके नहीं बना सकते। तो इस तरह सारिया क्वांटिटीज़ लई
ये चीज़ एप्लीकेबल है कि तां ही असीं इन्हां नूं फंडामेंटल कहने आ, बेसिक कहने आ। बेस का मतलब होंदा आधार, ठीक है। तो सारियां फिजिक्स दे विच जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन्हां दा ये बेस है, ठीक है। पंजाबी दे विच कह लो कि नींह पत्थर है। समझ लग गई जी। तो हुण असीं गल करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ड्राइव्ड मतलब ये फंडामेंटल तो बनी है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की चीज़ है कि इन्हों असी ड्राइव करते हैं, ओबटेन करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। उन्होंने मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ठीक है, तो उन्होंने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पहला भी मैं गल की सी कि स्पीड की, स्पीड किस दे इक्वल है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की चीज़ है, ये लेंथ है, दूरी, ठीक है। टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, आप लिख रहे हैं ना, तो लेंथ फंडामेंटल है। हुण असीं फंडामेंटल जाके देखो तो लेंथ का यूनिट की है? मीटर। टाइम का की है? सैकेंड। तो स्पीड का यूनिट की बन गया? मीटर पर सैकेंड। तो हुण ये देखो जी, ये फंडामेंटल तो बनी है। स्पीड किस तो बनी है? लेंथ ते टाइम तो ये ड्राइव्ड होगी, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इसके जो यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट हो गई। तो मीटर पर सैकेंड को असीं की कहांगे जी? मीटर पर सैकेंड इज़ ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स है। तो स्पीड की है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई होर गल करिए असीं सिंपल जी, एक होर एग्जाम्पल लईए जी। फॉर एग्जाम्पल एरिया। तो एरिया किस दे इक्वल हुंदा जी? लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ब्रेडथ एक्चुअली ये भी तो लेंथ ही है ना, ठीक है ना। असीं उस टेबल दे विच ही जाना राजे, फंडामेंटल वाले दे विच हर एक क्वांटिटी नूं उहदे तो ही ओबटेन करना है। तो ब्रेडथ भी एक किस्म की लेंथ ही है। तो इसके यूनिट की बननगे? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो बन जाएंगे जी मीटर स्क्वायर। तो ये जो असीं मीटर स्क्वायर की गल कर रहे हैं, ये ड्राइव्ड यूनिट्स है। तो इस तरह एरिया की है? ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो सारिया जिन्नियां भी फिजिक्स दे विच बाकी क्वांटिटीज़ है, उस 7 ते +2 के टेबल नूं छड्ड के, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं छड्ड के बाकी सारिया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तुसीं पहलां जिंदे बारे मर्जी सुनिया होवे जी, फोर्स बारे, एनर्जी बारे, ठीक है, प्रैशर बारे। तो ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उन्हां दे जो यूनिट है, जिस तरह मीटर पर सैकेंड है या मीटर स्क्वायर है, ये सारे की है? ये ड्राइव्ड यूनिट्स है। हुण असीं गल करते हैं जी, देखो एंगल की। जिहड़ा साडा एंगल सी प्लेन एंगल तो सॉलिड एंगल, असीं उस चीज़ नूं दोबारा डिफाइन करते हैं। देखो नाले रेडियन बारे दसते हैं तुहानूं। रेडियन की चीज़ है? एंगल। एंगल की चीज़ है कि एक लाइन है साडे कोल, देखो जी ये लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये लाइन कितनी रेवोल्यूशन करती है, कितना घूमती है। सपोज करो जी ये लाइन घूम के इस जगह पर पहुँच जाती है, तो ये कितनी रेवोल्यूशन है, ठीक है। ये रेवोल्यूशन कितनी है जी? तो उसनों एंगल दे विच मेजर किया जाता है, थीटा, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अबाउट द इनिशियल पोजीशन, आ उनकी पहला वाली पोजीशन सी, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है। सपोज करो जी जे साडे कोल सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है। तो सेंटर नूं असीं एक इहदे रेडियस शो करते हैं जी, ये रेडियस है जी। तो जे मैं इत्थे भी ज्वाइन करा ए ते बी पॉइंट ते, तो इस चीज़ नूं असीं कहने हैं जी आर्क, ठीक है। ये रेडियस है। हुण इत्थे भी देखो एंगल सबटेंड हो रहा है। तो इत्थे एंगल नूं डिफाइन करने का तरीका है, तो याद रखिया जी एंगल किस दे इक्वल हुंदा है? एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। की एंगल की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जे लेंथ ऑफ आर्क तो रेडियस बराबर हो जाए, सपोज करो आप ऐसे सिस्टम के विच ही गल करते हैं जिस तरह असीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जे लेंथ ऑफ आर्क हो जाए जी 1 मीटर,
तो रेडियस भी होवे 1 मीटर, मतलब आ जी लेंथ है ये भी 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। ठीक है, तो उस टाइम तो जो एंगल है उस एंगल में असीं कहने 1 रेडियन, मतलब 1 मीटर की आर्क 1 मीटर रेडियस के सर्कल से जिन्ना एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल में क्या जाता है 1 रेडियन। आ थीटा की डेफिनेशन है जी, ये याद रखना है, ये बहुत बारी यूज़ होएगी अपने कोले कि थीटा किस दे इक्वल है, थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मेन जी गल है जी वो ये है कि रेडियन तो डिग्री के रिलेशन की है ना। सिंपल तुहानूं कन्वर्शन दसदा जी मैं कि जिहड़ा 180 डिग्री का एंगल है, डिग्री एक पासे लिखदा जी मैं, दूजे पासे रेडियन। ठीक है, डिग्री नूं रेडियन दे विच कन्वर्ट करना है। जिहड़ा 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री जी है ना वो पाई रेडियन के इक्वल है कि 180 डिग्री का एंगल तुहानूं पता जी स्ट्रेट लाइन का एंगल, उसनूं पाई रेडियन का एंगल कहा जाता है। ठीक है, हुण जिन्ने डिग्री का एंगल हो जाएगा, जो 360 डिग्री है मतलब इसनूं 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो 2 पाई का एंगल हो गया। ठीक है, जो 90 डिग्री करता जी तो पाई बाय 2 का एंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके नाल ही तुसीं बाकी भी फाइंड कर सकते हो। जो 60 डिग्री हो गया तो ये पाई बाय 3 हो गया। तो तुसीं जिहड़ा एंगल चाहे जी तुसीं फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, तो 180 डिग्री जिहड़े है 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो ये भी याद रखना है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, तो इहदे तो तुहाडे कोले बाकी सारे एंगल जिहड़े है वो तुहानूं पता लग जाणगे कि किन्ने किन्ने रेडियन का वो एंगल है, जे असीं इसनूं रेडियन दे विच कन्वर्ट करना है तो। समझ लगी जी गल। ठीक है जी, हुण अगे आ जाओ जी, असीं गल करते हैं सॉलिड एंगल की। देखो 3 डिमेंशनल तो 2 डिमेंशनल के तुहानूं फर्क समझ आना चाहिए। ये पेपर जिसके उपर मैं लिख रहा, पेज जिसके उपर मैं लिख रहा, ये 2 डिमेंशनल है। इसकी लेंथ है तो ब्रेडथ है, थिकनेस जो इसकी मोटाई है आलमोस्ट निगलीजिबल है। ठीक है, तो जे कोई चीज़ मोटी भी होवे तो इसका मतलब वो 3 डिमेंशनस दे विच है, लेंथ भी है, ब्रेडथ भी है, थिकनेस भी है। ठीक है, इस तरह 3 डिमेंशनल बॉडीज़ दे विच जिहड़ा एंगल बनता है, सपोज करो जी आइसक्रीम की कोन है, आइसक्रीम की कोन देखी है सारे ने। तो हुण आइसक्रीम की कोन तो इस प्लेन एंगल दे विच डिफरेंस तुहानूं समझ आ रहा है कि ये सिर्फ 2 लाइनस है। वो कोन जो है 3 डिमेंशनल है। तो उस कोन को पकड़ के उसके अंदर देखो तो जो कोन बन रहा है वो सॉलिड एंगल बन रहा है। समझ लगी। तो उनके फेस का सर्कल, ठीक है, तो वो सर्कल जो है वो आइसक्रीम की कोन जी है वो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो सॉलिड एंगल है। ठीक है, उस सॉलिड एंगल नूं असीं स्टेरेडियन दे विच मेजर करते हैं। भी जे असीं सपोज करिए कि ये सफीयर है पूरा, तो सफीयर दे सरफेस लईए असीं उत्ते कुछ, तो उस सरफेस नूं असीं ज्वाइन करिए तो एक कोन बनेगी। तो कोन एक सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ऑफ सफीयर एट द सेंटर ऑफ सफीयर। तो कोई गल नहीं जी, इसनूं डिटेल दे विच आपां डिस्कस करांगे फिर नैक्सट टॉपिक दे विच। सो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।